Okay, so that shows us something that we need to invite our friends. We need to invite more people to come to these meetings. हमें हमारे दोस्तों को बुलाना है क्योंकि अगर हम नहीं बुलाएंगे मीटिंग में उनको, अगर यूथ मीटिंग में नहीं बुलाएंगे तो फिर हमारा क्या रोल है? तो आर रोल इन किंगडम ऑफ गॉड इज कि हम हमारे दोस्तों को मीटिंग्स में बुलाएं, उनको एनकरेज करें। चर्च फ्रेंड्स ही सही, हमारे कई चर्च फ्रेंड्स हैं जो कई बार ऐसे मीटिंग्स में नहीं आए हैं, तो उन्हें भी एनकरेज करना है कि आप इस मीटिंग से जुड़िए, संगति में जुड़िए। So there is joy in the presence of the Lord, and परमेश्वर कुछ नया कर रहा है, so don't miss out on that. So anyway, we have our worship team is ready right now. हमारी worship team ready है, and I just want you all to prepare your hearts. आप जानते हैं we are here to meet God, worship Him face to face. So all of you prepare your hearts. अपने दिलों को तैयार कीजिए। परमेश्वर यहाँ है और हम परमेश्वर की हुजूरी में हमें कैसे रहना है आप जानते हैं, कैसे हमें अपने आप को तैयार करना है। तो अपने दिलों को, मनों को, सारी बाकी बातों को साइड में रखते हुए लेट्स वर्शिप, एंड आई एम गोइंग टू हैंड इट ओवर टू द वर्शिप टीम नाउ। Always
keep on getting better. I'll keep on getting better. I'll keep on getting better. Sing it, keep on getting better. We'll keep on getting better. Oh, we worship. Keep on getting better. Keep on getting better. Oh, every day. Keep on getting better. We'll keep on getting better. One more time. Keep on getting better. We'll keep on getting better. Ooh, you keep on getting better. Keep on getting better. I'll keep on getting better. I'll keep on getting better. You are good. In the morning, I'll sing. You are good. In the evening, I'll sing. You are good. You are good to me. I've seen you move. You move the mountain and never leave. I see you do it again. You made
still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me. You never fail me. Yeah. Oh Jesus, never forget Jesus. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तू अपनी वाचाओं को कभी भूलता नहीं है। तू अपने लोगों को नहीं भूलता, तू अपने बच्चों को नहीं भूलता। तू हम सब की सुधि लेता है खुदा, और इस मधुर संगति के लिए खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं। आराधना जो हम कर पा रहे हैं खुदावंद, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। वचन जो हम सीखने जा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सभी को आपके हाथ में सौंपता हूँ। हम सभी को खुदावंद आपकी हुजूरी में ले और आपके अभिषेक में और आपकी आत्मा से भर दे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। Thank you worship team for such a beautiful anointed worship. आप लोगों ने हमें इतने अच्छे वर्शिप में अगुवाई किया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। Thank you so much. Yes, I hope every one of you have worshipped the Lord and had a good time with the Lord. अभी समय है कि हम लोग वचन की ओर चले। All of you know this is the time we're going to listen to the word. And before that, I want to see if you're all ready to listen to the word of God. Are you all ready? आप लोग सब तैयार हैं क्या परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? मैं जानना चाहती हूँ आप लोग कैसे तैयार हैं। क्या आप लोग सब मुझे आपकी बाइबल्स दिखा सकते हैं क्या? मेरी टीम भी मुझे मोबाइल दिखा रही है। क्या आप लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं? कैन ऑल ऑफ यू स्विच ऑन योर वीडियोस? प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस एंड शो मी द बाइबल। आपके पास बाइबल्स है? Yes, I can see a lot of you have Bibles. Yes. So also, we just don't have to be listeners of the word, but we have to walk in it. So do you guys? So उसके लिए अपन को क्या करना चाहिए? We need to write notes. We need to take notes. So आप लोग के पास आपका पेन और आपका नोटबुक है क्या? You guys, please show me. अगर आप लोग अपना पेन और अपना नोटबुक लेकर आए तो आप लोग जरूर दिखाइए। See, people are showing me that. Yes, तो आप लोग कुछ लोग रेडी है। तो मैं चाहती हूँ अगर आप लोग रेडी नहीं है तो प्लीज 30 सेकेंड्स लीजिए, फटाफट से अपना पेन अपना पेपर जल्दी लेकर आइए। When our preacher is getting ready to come and preach the word of God, हमारे बीच में बहुत स्पेशल एंड एक्साइटिंग स्पीकर है। तो शी इज फ्रॉम दिल्ली। आप लोगों ने उनका नाम तो पढ़ा ही होगा। दिल्ली में ये लोग टीनेजर्स के साथ वर्क करते हैं, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से। शी वर्क्स विद द टीनेजर्स इन दिल्ली। Her husband is an advocate in the Supreme Court. उनके पति सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब तालियों के साथ दीपा फिलिप्स का वेलकम करें जब वो वचन लेकर आ रही है। थैंक यू सो मच। आप सबको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? जी सुनाई दे। ऑलराइट, थैंक यू। सबसे पहले मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप सबके साथ आज मिल सकी और जुड़ सकी। स्पेशली इतना दूर रहकर भी हम एक साथ ऑनलाइन प्रभु की आराधना कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। इसलिए प्रभु का बहुत धन्यवाद। पास्टर पॉल मैथ्यू और पास्टर क्रिस्टी का धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का वचन आप लोग के साथ बांटने के लिए। और जैसे कि एन, मैं विश्वास करती हूँ आपका नाम एन है, माफ करना अगर नहीं है।
तो हम लोग कुछ सालों से नोएडा शिफ्ट हुए हैं और हमारा बाय प्रोफेशन आई एम अ जर्नलिस्ट, लाइक मैं जो पत्रकारिता मैंने पढ़ा है और पिछले 5 साल से एक ब्रेक पे हूँ और घर से काम कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम दीपा है फिर से, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं आप सबके साथ जुड़ सकी। तो आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा अनयूजुअल है, वो है टिकटॉक और वॉक द टॉक। टिकटॉक विश्वासी या वास्तविक या खराई के विश्वासी। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि टिकटॉक अभी काफ़ी न्यूज़ में है और टिकटॉक के इतने सारे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है हमारे देश में, और अचानक से हम देखते हैं कि हमारे सरकार ने ये निर्णय किया कि टिकटॉक को बंद किया जाए। तो सबसे पहले टिकटॉक विश्वासी का मेरा क्या मतलब है उसके ऊपर मैं थोड़ा आपको ध्यान ले जाना चाहती हूँ। टिकटॉक में जैसे आप सब जानते हैं, आप में से कितने लोग ने टिकटॉक यूज किया है? क्या आप थम्स अप या हाथ ऊपर कर सकते हैं? कोई? ओके, 2 लोग का मैंने देखा। ओके ओके, सिर्फ 2 लोग, 3 लोग, ओके ठीक है। तो आई थिंक एटलीस्ट आपने सुना होगा, अगर आपने इस्तेमाल भी नहीं किया होगा तो एटलीस्ट आपने सुना होगा। और टिकटॉक का खासियत ये है कि हम कुछ सेकंड्स के वीडियोस वो लोग डालते हैं और वो काफी फेमस हो जाते हैं, या नाचते हुए या कुछ गाते हुए, है ना, अलग अलग खूबियों को हम दिखाते हैं। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह टिकटॉक भी एक प्लेटफॉर्म है। मैंने बस उसको हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, उसको सिर्फ एक सिंबॉलिक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा जीवन अभी इतना सोशल मीडिया के अलाउंड रिवॉल्व करता है कि कहीं ना कहीं हमारा मसीही जीवन भी वैसा ही हो गया है, right? Our life revolves so much around the social media as youngsters, and we are so much addicted to the social media that somewhere it has spilled on to our walk with the Lord. कहीं ना कहीं हमारा जो सोशल, हम जो लोगों को दिखाते हैं या जो हम कुछ सेकंड के लिए जो हम दिखाते हैं, जितने लोग इंस्टाग्राम में उन्हें पता है कि हम सिर्फ अच्छे फोटोज डालते हैं ना, कोई खराब फोटो तो डालता नहीं है। जिस दिन बाल ऐसे खड़े शौक में, वो कोई तो डालेगा नहीं, है ना। जिस दिन भिंडी खराब पकाया, चिकन खराब पकाया, जल गया, वो तो कोई डालेगा नहीं। लेकिन हम क्या डालते हैं? वो चीज डालते हैं जो बहुत सुंदर लगता है, जो बहुत अच्छा लगता है, जो बहुत मन भावना है। और कई बार दुख की बात ये है कि मसीही होने के नाते भी कई बार हम वही करते हैं। तो आज परमेश्वर हमसे यही पूछता है कि क्या हम अपने जो मसीही जीवन है उसको भी एक सोशल मीडिया अकाउंट की तरह जी रहे हैं, right? Are we also walking or living a Christian life to please and to show others? That is what we are going to think about today, right? कई बार हमें लोगों को दिखाना बहुत अच्छा लगता है, देखो मैं कितना अच्छा गाती हूँ प्रभु के लिए, है ना, कितना मेरा प्रार्थना सुनो, इतने सारे वचन ठूस के मैं प्रार्थना करती हूँ, है ना। Look at my prayer life, right? Look at my songs. Many times we do a lot of things to show others that we are good Christians. Good Christians. हम बहुत अच्छे विश्वासी हैं, दिखाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, यहाँ तक अपने घर में भी हम दिखावा करते हैं, है ना। बाइबल लेके बैठेंगे और परमेश्वर को पता है हमारा दिमाग कहाँ है ना। तो यही है कि अगर हम वास्तविक मसीह है, या हम लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं या किसी को खुश करने के लिए कर रहे हैं, शायद वो पासवान हो, चाहे वो हमारे दोस्त हो, माता पिता हो, डोंट फॉलो जीसस फॉर अदर्स। आप दूसरों का कहने पे या दूसरों को खुश करने के लिए परमेश्वर के पीछे ना चले। और अगर आप ऐसे एक व्यक्ति है जो एक दोहरा जीवन जी रहा है, दूसरों के सामने आपका चेहरा अलग है और जब आप अकेले में हैं आप कुछ और है, तो परमेश्वर आज आपसे बातचीत करना चाहता है। If you are someone, a Christian believer, youth who's living two faces between people, one face, a good Christian face in front of people, and another face when you're alone. God is going to talk to you today. God wants you to introspect your life today. तो हमारा जो मूल अध्याय है वो 2 शमूएल 11 है। यहाँ पर हम देखते हैं राजा दाऊद के बारे में हम देखते हैं। राजा दाऊद एक, जैसे बोलते हैं सोशल मीडिया में एक इन्फ्लुएंसर था, है ना, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे। किंग डेविड वाज एन इन्फ्लुएंसर इफ यू से इन मॉडर्न टर्म्स, लाइक उनके इतने फॉलोअर्स थे। क्यों? उनका पोस्ट के ऊपर लाइक पर लाइक, क्यों लाइक पर लाइक
क्या उन्होंने किसको डिफीट किया? गोलायत को डिफीट किया, है ना, फिलिस्तीन को खत्म किया, सर काट दिया, वो कर दिया, ये कर दिया. सो हिज पोस्ट विल गेट thousands and millions of likes. पूरी प्रजा उनका बहुत बड़ा फैन है. It's a big followers he has got, right? और सब लोग का ओपिनियन राजा दाऊद के बारे में क्या है कि इतना अच्छा राजा हमें मिल गया, इतने वर्षों के बाद हमें इतना अच्छा एक राजा मिल गया, right? So that is what, if we say like David was an influencer, we can say that, you know, he was a great influencer with so many followers and he had an ideal life outwardly, right? But there were instances where he fell. और वहां पे हम देखते हैं दूसरे शमूएल 11 में कि उसके जीवन जितना बाहर से दिखता था, कभी कभी वो भी गिरता था, है ना, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया क्या थी वो हम ज्यादा जरूरी है. हम देखेंगे दूसरा शमूएल 11, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ. फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने के लिए निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर के घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रहा. और सांझ के समय दाऊद पलंग से उठकर राजभवन के छत पर टहल रहा था और छत पे से उसको एक स्त्री जो बहुत सुंदर थी नहाती पड़ी. अब दाऊद ने बेचकर उस स्त्री को पुछवाया. तब किसी ने कहा, क्या ये एलीम की बेटी और हित्ती उरैया की पत्नी बतशीबा नहीं है? तब दाऊद ने दूध बेचकर उसे बुलवा लिया और वो दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया. और वह स्त्री गर्भवती हुई. तब दाऊद के पास कहला के भेजा कि मुझे गर्भ है, राइट. सो हम देखते हैं कि अदरवाइज एक दाऊद जिसका बहुत अच्छा रेपुटेशन है ना, परमेश्वर के मन के पीछे दौड़ने वाला एक व्यक्ति, ऐसा एक रेपुटेशन वाला इंसान यहाँ पर वो देखता है, वो एक पाप में गिर जाता है. वो एक सुंदर स्त्री को देखता है जो किसी और की पत्नी है और उसको चाहने लगता है और हम देखते हैं कि वो एक पाप कर बैठता है. अब आपको ये ध्यान रखना है कि दाऊद आपके और मेरे जैसे नहीं है. ही इज अ किंग, राइट. वो एक राजा है. ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स विद हिज सब्जेक्ट्स. वो जो भी चाहे वो अपने लोगों के साथ, जो स्पेशली जो स्त्रियां थी उस समय, ऐसा एक रीति था कि जो भी राजा चाहे वो आपके साथ कर सकते हैं, राइट. लेकिन हम देखते हैं कि दाऊद का क्या है. दाऊद ने उस स्त्री को, उसके पास इतनी पत्नियां ऑलरेडी थी, लेकिन उसने क्या किया, एक दूसरे आदमी की पत्नी को अपने पास बुलाया. ठीक है, ये उसका पाप था. दिस वाज द सिन दैट ही डिड एंड नो वन न्यू अबाउट इट, राइट. और किसी को उसके बारे में पता नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर द मे बी द पैलेस गार्ड्स और सर्वेंट्स और पीपल उसके पास जो थे. किसी को नहीं पता होगा, पूरे राज्य में फैला नहीं कि अरे देखो क्या हो गया. ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल बात है. कोई राजा किसी को बुला ले, कोई बात नहीं, राइट. लेकिन ये हम देखते हैं कि दाऊद ने ये पाप किया और किसी को अभी पता नहीं है, राइट. तो सिर्फ दाऊद को पता है कि उसने क्या किया है. फिर वर्स 6 onwards we see that David tries to cover up his sin, right. हम देखते हैं 6 वचन से हम देखते हैं कि दाऊद कितनी कोशिश करता है कि अपनी इस पाप को छुपा दे. सबसे पहले वो इस स्त्री के पति को वापस बुलाता है. वो युद्ध लड़ रहा है बेचारा, उसको वापस बुलाता है. और वापस बुलाता है, वो बोलता है जा जा तू घर जा. ठीक है, वो बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, है ना. वो बोलता है मेरे दोस्त लोग लड़ाई कर रहे हैं, मैं कैसे जाऊं. तो राजा बोलता है अरे यार सत्यानाश, क्या करे अब क्या करे. ठीक है, फिर वो बोलता है, उसको बहुत सारा दारू वारू पिलाता है. बोलता है अब तो ये टुन होके पक्का घर जाएगा. लेकिन वो टुन तो हो जाता है पर वो घर के बाहर जाके सो जाता है. ठीक है, तो हम देखते हैं कि दाऊद बहुत मशक्कत करता है कि वो कैसे भी अपने पाप को कवर अप करे, राइट. वो चाहता है ये दिखाने के लिए कि मैंने कुछ गलत नहीं किया लोगों के सामने. He doesn't want anyone to know what he has done. He's trying his best. He's using all his power, all his position, all his authority to cover up his sin, right. Verse 6 से हम देखते हैं, आप पढ़ सकते हैं उसको, समय के कमी के कारण मैं नहीं पढ़ रही, राइट. हम 6 से हम 14 तक हम देखते हैं. और फाइनली
डेविड इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो उस औरत के पति को मरवा डालता है, right? He finally gets so frustrated that he ends up murdering an innocent man who was the husband of this woman, right? हम भी अपने पाप को छुपाने के लिए क्या क्या नहीं करते? What all we don't do to hide our sin, right? We find times when no one is there, right? We will find passwords. If it is password protected, we will find out, crack the password. अगर कुछ चीज पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, हम उसको तोड़कर पासवर्ड पता लगाकर देखेंगे, है ना? इंटरनेट खत्म हो गया, कैसे भी रिचार्ज करा के इंटरनेट से हम कुछ गलत देखते हैं. What are the things that we do? We use all our strength to hide our sins. हम अपने सारी शक्ति किस में लगाते हैं? अपने पाप को छुपाने में लगाते हैं. अपने सारे बुद्धि सब कुछ क्या करते हैं? उसको छुपा के रखने के लिए. That nobody should know what I am going through, what I have done, right? Nobody should know how wicked I am. किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ. क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे? पास्टर की डॉटर है, क्या होता है, चर्च में वर्शिप लीड करती है, इतना अच्छा गाना गाती है और ये करती है, right? We don't want anyone to know or think bad about us, right? And this is what we see in the life of David. So on social media or on TikTok, he was doing very good. But in front of God, what does God think about David? And now we come to chapter 12. हम 12वीं अध्याय में आते हैं. आपको क्या लगता है, परमेश्वर ने देखा दाऊद ने क्या किया कि नहीं देखा? What do you think? Yeah, can you give me a thumbs up if you think that God saw what David did? Yeah, God is always seeing what we do, but it is our deceitfulness that we think that we can hide things from God, right? हमारे पाप के जो deceitfulness है, जो धोखा हमें पाप देता है, वो ये है कि वो कहता है कि परमेश्वर नहीं देख रहा, परमेश्वर को उतना फर्क नहीं पड़ता. लेकिन God is worried about every single thing in your life. God is worried about everything that you do, everything you say, everything that is in your heart, the intention of what you're doing, why you're doing. This evening, God's child, God is worried about that. अगर आप जो कर रहे हैं बाहर से अच्छा है, लेकिन आपका इरादा खराब है, तो परमेश्वर आज आपसे प्रश्न करता है. परमेश्वर को बहुत मैटर करता है why we do the things we do. It matters to God what we do, why we say the things we say, why we listen to the things we listen. It matters to God, right? So परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर जो भविष्यवक्ता नाथान को दाऊद के पास भेजता है, और नाथान 12वीं अध्याय, दूसरा शमूएल 12वीं अध्याय 9 में पूछता है, दाऊद से पूछता है, तूने यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जानकर क्यों वो काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? तूने हित्ती उरैया को तलवार से तूने घात करवाया और उसकी पत्नी को तूने अपना कर लिया और उसे तलवार से मरवा डाला है, right? So God confronts him with his sin. परमेश्वर उससे पाप को उसके सामने बोलता है, और परमेश्वर बहुत इंटरेस्टिंगली क्या बोलता है? Evil in his sight. तूने जो पाप किया है वो परमेश्वर के आंख के सामने बुरा है. The sins that we do are in the sight of God. हम जो बुराई करते हैं वो परमेश्वर की नजर के सामने है, right? क्या हम उसको अंदर जाने दे सकते हैं? Can we let that sink in? Right? What we do is in the sight of God. It is against God. And again, David has two choices. अब जब पाप के बारे में उसको सीधा कोई कन्फ्रंट कर रहा है, उसके पास दो चॉइस है. वो भविष्यवक्ता को क्या कर सकता है? गला कटवा सकता है. सिर्फ नेथन को परमेश्वर ने बताया है. God has only revealed this to Nathan. He can get Nathan killed because he is the king. The second option he has is to repent before God. और किंग दाऊद के पास जब उसका पाप का उसको अंगीकार हुआ, जब पश्चाताप हुआ, जब परमेश्वर उससे बोध कराता है, दो उसके पास उपाय थे. पहला था कि वो उस भविष्यवक्ता को खत्म कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ इस भविष्यवक्ता को बताया है
इसके पाप के बारे में। दूसरा जो उसके पास उपाय था वो था कि वो परमेश्वर के पास लौट कर जाए। और दाऊद ये दूसरा उपाय लेता है और वो कहता है, हम देखते हैं 13वीं अध्याय में हम देखते हैं, दाऊद ने नाथान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। राइट? David confesses that I have sinned against the Lord. My dear youth and dear teenagers, when we sin against God. जब हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर के विरोध पाप करते हैं। कोई मनुष्य से बढ़कर, कोई चीज से बढ़कर हम परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं। Do you want to mess with God? Right? When we are sinning, we are going against God. जब हम पाप करते हैं हम परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं। लेकिन हमारी जो प्रतिक्रिया है वो क्या होना चाहिए? दाऊद ने जैसे कहा, हाँ मैंने गलत किया है, लॉर्ड आई हैव सिन्ड अगेंस्ट यू। राइट? तो हम यही कॉन्टेक्स्ट में भजन संहिता 51 में हम देखते हैं, we see the same context। जब उसको इस भविष्यवक्ता उसके सामने आता है, हम साम 51 में देखते हैं, अगेन उसका 4थे अध्याय में वो कहता है, मैंने केवल तेरे विरोध पाप किया है, तेरी दृष्टि में जो बुरा है वही किया है। Right? He says that God, I have sinned against you. I have done what is evil in your sight. Again he is confessing that, and then he asks for God's mercy। पहला अध्याय हम देखते हैं, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। Right? He is asking for God's mercy. God, I have sinned against you. I ask for your mercy. परमेश्वर तेरी दया को मैं मांगता हूँ। And then verse 10, a verse which we all know, है ना? 10वीं अध्याय जो हमें सबको पता है, वाक्य 51, Psalm 51:10। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। God, heal me of my sin and my wickedness। Right? So what does it mean to be walking the talk? It means that our life is a life of integrity. We are whole. What we are on the outside, we are on the inside. है ना? परमेश्वर का वचन बाद में कहता है कि वो एक खरा व्यक्ति था, दाऊद। इसका मतलब उसका जीवन जैसा बाहर था वैसा ही अंदर था। Is your life the same inside and outside? Is there a difference? क्या आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ करते हैं? क्या आप लोगों को खुश करने के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या आप अपने पापों को छुपा रहे हैं? परमेश्वर नहीं चाहता कि हम एक दोहरा जीवन जिए। God does not want us to live hypocritical lives. God wants us to be as we are on the inside, to be on the outside. This is God's desire for us. और एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि कई बार हम लोग स्पेशली इस सीजन में एज यूथ, टीनेजर्स, कई हम लोग से बहुत से शायद जॉब्स भी कर रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं। मतलब हम सब, मुझे पता है कि आप सब परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, बट वो ख्याल बार बार हमारे मन में आ सकते हैं। लेकिन हम एक कलीसिया के रूप में, परमेश्वर के बच्चों के रूप में, आर वी ट्राइंग टू हाइड दोज थिंग्स? राइट? शायद आप एक डिफिकल्ट बैकग्राउंड से आए हैं, आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है जो आप किसी से बांटना नहीं चाहते। यू आर एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ पेन एंड बिटरनेस, बट यू डोंट वांट टू ओपन अप, राइट? बट आई वांट टू टेल यू टुडे दैट यू कैन ओपन अप बिफोर द लॉर्ड। दाऊद ना केवल अपने पापों को खोलता है, हम पूरे भजन में देखते हैं, यू सी इन द साम्स, ही टॉक्स टू गॉड अबाउट एवरी इमोशन, राइट? वो जो कुछ भी उसके मन में है वो परमेश्वर को बोलता है। I encourage you today, if you are depressed, if you are feeling anxious, if you don't know how to overcome, आपको नहीं पता कि आपके जीवन में जो हुआ है उसके साथ आप क्या करें, आगे कैसे बढ़े, तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आप अपने चर्च के जो एल्डर्स है, दीदीज है, भैया है, उनके पास जाएं, पासबान के पास जाएं, अपने दिल को खोल कर रखें, जिनको आप विश्वास कर सकते हो उनको बताइए। परमेश्वर की कलीसिया मिलकर काम करने वाली कलीसिया है। वी आर वन फैमिली।
God has united us to help each other. Don't judge. If someone comes to you, आप उनका न्याय ना करें, उनको मदद करें. और सबसे इम्पोर्टेंट, आप परमेश्वर को बताएं आपके दिल में क्या है. Don't hide things. Don't hide things. It's time that we unlock ourselves. It's time that we don't just have followers, but we become a follower of Christ. Right? हमारा ये समय है कि हम परमेश्वर के सच्चे विश्वासी गण बने. आपके मन में जो भी खराई किसी के प्रति कुछ भी है, तो आप उसको खुलकर प्रभु को बोले, प्रभु मैं उसको माफ नहीं कर पा रहा. राइट? लाइक आई हैव अ 3-year-old सन. मेरा एक 3 साल का बेटा है, और उसको जब भी हम कुछ बोलते हैं करने को, वो पहले बोलेगा नहीं. तो हम उसको बोलेंगे तो हम उसको पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बोलता है मुझे नहीं करना है. राइट? ही विल ओपनली से दैट आई डोंट वांट टू ओबे यू, my 3-year-old son. So I was thinking, if God tells us something, what do? We'll do, I'll think about it. I didn't hear God. Right? मैंने तो सुना नहीं. हाँ, मैं सोचती हूँ. लेकिन क्या हमारे पास हिम्मत है परमेश्वर को बोलने के लिए कि प्रभु नहीं करना, मुझे नहीं मन करना, मुझसे नहीं होगा? Are we bold enough to tell the Lord, Lord, I on my own don't want to obey you. I don't want to listen to you, but help me, Lord. Help me. प्रभु तू मुझे मदद कर. You know, a transparent walk before God. God loves that. परमेश्वर को वो बहुत पसंद है कि जो हमारे अंदर है हम परमेश्वर को खुलकर बताएं. Right? So this is the word which God gave in my heart for you. I'm so blessed to be here. कुछ समय हम लेंगे, अपने आंखों को आप बंद करें. मैं एक गीत आप लोग के लिए गाना चाहती हूँ. ये सब हम we all know the song. If God's Spirit is pointing out something in your life today, अगर पवित्र आत्मा आपको कोई चीज बोध करा रहा है जो आप छुपा रहे हैं, आप बहुत थक गए हैं उस पाप को छुपा छुपा कर, है ना? आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप बाहर से सब कुछ अच्छा है, कोई आपको पूछता है आप कैसे हो, बिल्कुल अच्छे पास्टर साहब बहुत अच्छे है ना, दीदी बहुत ठीक हूँ. You know, let's stop saying that. Let's be honest. Let's be transparent. Let's close our eyes and just worship God. आइए अपने आंखों को बंद करें. I surrender. I surrender. प्रभु को बोले, प्रभु to thee, my blessed Savior, surrender. सब कुछ प्रभु सब मैं देता हूँ. सब कुछ देता हूँ. तुझको मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ. यीशु को मैं सब कुछ, यीशु को मैं सब कुछ देता हूँ. सर करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, रखूंगा सब मैं देता हूँ. यीशु सब मैं देता हूँ. तुझको मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ. God is just showing me that some of you have problems in relationships. आप में से कुछ लोग को रिश्तों के साथ दिक्कत है, कैसे दूसरों से व्यवहार करें, खासकर जो ऑपोजिट सेक्स है, जो हमारे दूसरे लिंग के जो
व्यक्ति है उनके साथ कैसे बर्ताव करें। आपको बहुत दिक्कत होता है, आपको समझ नहीं आता आप कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, कैसे अपने शरीर को कंट्रोल करें। परमेश्वर आपको कह रहा है कि आप उसके हाथों में सौंप दे और आप कोई भी अगुवे से जाकर आप खुलकर आप अपने इस स्ट्रगल के साथ काम करें। हालेलुया। God wants to set you free. If you are struggling with an abusive relationship, God wants to set you free. अगर आप एक बहुत ही उत्पीड़ना करने वाले एक रिश्ते में आप फंसे हैं, परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप पहला कदम को ले। Some of you are struggling with your tongue. आप में से कुछ लोग अपने जीभ को ऊपर नियंत्रण करने के लिए बहुत आपको मुश्किल लगता है कि अरे मैं बोलना कुछ और चाहता हूँ लेकिन मैं कुछ और बोल देता हूँ, और उससे बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाती है। Just give it to the Lord. Just confess it to the Lord. Just tell the Lord, Lord, I give it to you. प्रभु मैं तुझे देता हूँ। प्रभु तू ले ले प्रभु। हालेलुया। ओ शखरिया बदला रसा खंबा दादा बाबा। There is nothing impossible with God. परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं। तू जो असंभव है कहता है मेरे जीवन में ये कभी नहीं बदलेगा। परमेश्वर आज तुझे कहता है हालेलुया, तुझे बुलाने वाला मैं हूँ, तुझे बदलने वाला मैं हूँ। हालेलुया। यीशु के लहू से तू शुद्ध हो जाए। हालेलुया। Be cleansed in the blood of the Lamb today. Hallelujah. Oh shaka baba ki kare sakha। Oh सब कुछ सारी चिंता बोझ डिप्रेशन यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया। ओ बुरे ख्याल, हालेलुया, बुरे ख्याल, बुरे सपने यीशु के नाम में, यीशु के नाम में एक छुटकारा को हम बोलते हैं। हालेलुया। ओ अकेलापन, हालेलुया, यीशु के नाम में। यीशु आपको कहता है तू अकेला नहीं है। हालेलुया। all loneliness in the name of Jesus. God reminds you, you are not alone. He is with you. He is with you in the name of Jesus. आप लोग के कुछ लोग प्यार के लिए तरस रहे हैं। Some of you are thirsting for love. God wants to fill you today. No love of any human can satisfy us. परमेश्वर के अलावा कोई भी प्यार हमें तृप्त नहीं कर सकता। आप परमेश्वर को बोले प्रभु मेरे अंदर की जो भूख है प्यार के लिए, प्रभु तू उससे भर दे, तू उससे भर दे। हालेलुया। You are all I need. You are everything. Every breath of mine, I give you everything. You are all we need. You are all in all. Yeah. सब कुछ देते हैं। कुछ नहीं प्रभु जो हमारा है, सब कुछ तेरा है। I surrender। यीशु सब मैं देता हूँ, सब कुछ देता तुझको सब मैं देता। हालेलुया। हाँ प्रभु, हम कुछ भी छुपा कर चलना नहीं चाहते प्रभु, बाहर से दिखावा करके नहीं प्रभु, तुझे खुश करने वाले प्रभु, तुझे प्रसन्न करने वाले दाऊद के समान प्रभु, हम अपने पापों को छुपा कर नहीं प्रभु, अपने पापों को अंगीकार कर कर आगे बढ़े प्रभु। हमारे अंदर जो भी चुनौतियां हैं, हमारे अंदर जो भी दुख और दर्द है प्रभु, मिलकर प्रभु तेरे वचन से उसका सामना कर कर हम आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु के नाम में।
मैन गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। मेरे को बहुत खुशी हुई कि that I could connect with all of you. I will keep you in praise. इतने अभिषेक वचनों के लिए रियली जस्ट वांट टू एनकरेज हमारे सारे जवानों को कि दिस इज द टाइम when we confess our sins, when we actually come before the Lord honestly, हम परमेश्वर के सम्मुख में पूरे ऑनेस्टी के साथ हम परमेश्वर से सब कुछ बांट सकते हैं। और मैं यही बोलना चाहूंगी आप लोग सभी से कि यू नीड टू सिट विद गॉड, कन्फेस योर सिंस, क्योंकि हमारा सीक्रेट लाइफ जो है परमेश्वर के सामने रखिए। परमेश्वर आपको उसमें से डिलीवरेंस देगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा। तो encouraging all of you to walk in the word and take this as a challenge this week, कि आप इस हफ्ते इसे चैलेंज के रूप में लीजिए कि हम परमेश्वर के और करीब आएंगे, अपने पापों को साइड में रख, हमें पापों को छोड़ के हम परमेश्वर के सम्मुख में चले। So thank you so much again, Sister Deepa, for coming and ministering to all of us. Thank you so much. क्यों ना हम लोग सब ताली बजा के Sister दीपा का एक बार धन्यवाद दें। मैं चाहूंगी कि अभी लास्ट में आखिरी प्रेयर करने के लिए शाइमोल दीदी आए और शाइमोल दीदी कुछ शब्द बोले और आखिरी प्रेयर करे, और उसके बाद मेरे पास कुछ अनाउंसमेंट है, तो आप लोग तब तक वेट करिएगा। Hallelujah. Thank you, Deepa, for the wonderful words. And मैं आप सब यंगस्टर्स के एक बात बोलना चाहती हूँ। आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम आपको किसी से बांटना नहीं हो पा रहे, इफ यू कांट शेयर द प्रॉब्लम्स टू एनीवन, देयर इज आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन हमसे कांटेक्ट, यू कैन कांटेक्ट टू मी और एंड हम विल डू द, मतलब हम कॉन्फिडेंशियलिटी हम रखेंगे और आपसे हम बात करेंगे। we are ready to listen from you. So if you have any problems, you can contact us, you can call us. We are ready to listen to you. आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस फॉर दिस ब्यूटीफुल टाइम। थैंक यू, हालेलुया प्रभु, सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू प्रभु जी, आज हम सुंदर वचन हमको आपने दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हालेलुया, हम टू फेसेस के हमको नहीं जीना है प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, आप हमारे अंदर क्या है वो भी हमारे बाहर भी होना चाहिए प्रभु जी। और हमारी कुछ भी गलतियां प्रभु जी है हमारे दिल में, if any shortcomings, if there are any sins in us, Lord please, Lord we surrender today to your, आपके चरणों में हम प्रभु हम सरेंडर करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया, हम आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु जी। हालेलुया Lord, I submit all the youngsters who have joined for this meeting, Lord Jesus, हालेलुया, सबको आपके हाथ में दे रहे प्रभु जी। प्रभु जी उनके जीवन में जो प्रॉब्लम है किसी से शेयर नहीं कर सकता है प्रभु जी, ऐसे जवानों के लिए आज हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया, तू बात कर प्रभु जी, जो प्यार के लिए प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया, वो प्यार के लिए तड़प रहे प्रभु जी, उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। लॉर्ड वी आस्क फॉर योर लव, वी डिक्लेयर योर लव इन देयर लाइव्स लॉर्ड जीसस। हालेलुया, सबको हाथ में देते प्रभु जी। हालेलुया, हम एक नया जीवन जीने के लिए आपके हाथ में हम सरेंडर कर रहे प्रभु जी। सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद करते। आज जुड़े हुए सब जवानों को आपके हाथ में दे रहे प्रभु जी, सबके दिलों के प्रभु जी प्रॉब्लम्स को आप जानते हैं प्रभु जी, और उनके उत्तर आप दीजिए प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, और इन जीसस नेम वी आस्क एंड प्रे, आमेन। Thank you, Didi. Thank you, Deepa, for the wonderful words. Thank you, Didi. God bless you. Thank you, Shaimol Didi, प्रार्थना के लिए। So अभी we have some exciting news for you all. So this week we will be announcing something. तो हम लोग इस हफ्ते कुछ exciting news के साथ हम आ रहे हैं, और अगर आपको वो जानना है तो आप लोग हमें Instagram और Facebook में जरूर फॉलो कीजिएगा। एडमिन ने अभी लिंक भेजा है, तो आप लोग वहां पे हमें जरूर फॉलो करना, and we will tell you guys what is coming. Soon something is coming up, something big is coming, and we want all of you to join in. हम लोग चाहते हैं कि आप लोग सभी उसे फॉलो करिए। प्लस हम लोग को इस हफ्ते जैसे हमने राह बनाता सॉन्ग किया, जैसे हमने ब्लेसिंग सॉन्ग किया, वी हैव समथिंग, हमारे भाई लोग में से 2 जनों ने कुछ किया है, तो वेडनेसडे को हम लोग वो रिलीज कर रहे हैं।
तो आप लोग जरूर IGTV पे रिलीज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम IGTV पे, तो प्लीज फॉलो अस देयर। आप लोगों को बाकी बातें उधर मालूम पड़ेगी, तो वी जस्ट वेटिंग फॉर यू ऑल टू फॉलो अस। लिंक जहाँ है उसे कॉपी करिएगा, एंड वी विल सी यू गाइस। अगर इफ यू हैव एनी क्वेरीज, अगर आपको कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्पिरिचुअल लाइफ या फिर आपके पर्सनल लाइफ, अगर आपको काउंसलिंग भी चाहिए तो आप हमें वहां पर मैसेज कर सकते हैं, एंड वी विल डायरेक्ट यू टू द राइट पीपल। हम लोग आपको जो सही लोग हैं, बड़े लोग या फिर आप काउंसलर्स हमारे बीच में है, तो उनकी तरफ हम आपको डायरेक्ट करेंगे। तो आप लोग जरूर हमको वहां पर मैसेज करिएगा, एंड कोई भी सजेशन भी होगा अगर आप, और हम लोग चाहते हैं कि अगर आप लोगों को कोई भी टैलेंट है या फिर एनीथिंग यू वांट टू शो, यू वांट टू गिव योर प्लेटफॉर्म फॉर दैट, तो आप लोग हमको कांटेक्ट कर सकते हैं वहां पे। प्लस अगर इफ यू वांट टू शेयर एनी टेस्टिमनीज, अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने कुछ किया है और आप हमें बताना चाहते हैं, तो प्लीज डू कांटेक्ट अस ओवर देयर। वी वुड लव टू कनेक्ट विद यू गाइस। So thank you, and we will see you next week. Same time, 5:30 p.m. Please call your friends. आपके friends को बुलाइएगा. So thank you.